Welcome you all guys in my channel Study Hearts. Today we will discuss the first chapter, the very first chapter of class 10th English, and the chapter name is A Letter to God. So let us see first of all introduction of this chapter, and after that we will see the summary of this chapter in English, and after that in Hindi the same summary of the chapter. So let us start. So Letter to God introduction. A story, A Letter to God by G.L. Fuentes revolves around the idea of having unquestionable belief in something. The story is set in a Latin American country. Lancho, the farmer who is the protagonist of the story, writes a letter to God seeking him for the Almighty after discovering his entire crop yield destroyed by a devastating hailstorm. Although his wishes get fulfilled partially, if not completely, he is grateful in the end, and question of the honesty and modesty of the postmaster who actually helped him with money in the name of God. Now come in the chapter and let us start reading. Lancho crop was destroyed by heavy rain, so he turned to God for help. He wrote to God a letter asking him to send him money. He received a letter from God along with some money. Who actually sent the money? What did Lancho do then? Let us read the story. Letter to God. The story was about an innocent who strongly had faith in God and wrote a letter to God himself. The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. From this height one could see the river, and next to the corral the field of the ripe corn, dotted with the kidney bean flower that always promised a good harvest. The only thing the earth needs during rainfall, or at least a shower. It was during the meal that, just as Lancho had predicted, big drips of rain began to fall in the northeast. Huge mountain of clouds could be seen approaching. The air was fresh and sweet. "It's really getting hot now," exclaimed that the man, mortified. "I hope to pass quickly." It did not pass quickly for an hour. The hail rain on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. The field was white as it covered with salt. Lancho is a man who, devastated because of the hailstorm that hit his farm and ruined almost everything. The corn was totally destroyed. That night was a sorrowful one. All our work for nothing. There is no one who can help us. Lancho was an ox of a man, working like an animal in the field, but still he knew how to write. Having full faith of God, he then wrote a letter to God. "God," he wrote, "if you don't help me, my family and I will go hungry this year. I need 100 pesos in order to sow the field again and to live until the crop come because the hailstorm." To wrote to God on the envelope, put the letter inside, and still trouble went to town. At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. The village postmaster opened it and read it. The postmaster came with an idea answer the letter, but when they opened it, it was evident to that answer he needed something more than goodwill, ink and paper. The postmaster then decided to help him and gathered everyone's money as an act of charity. It was impossible for him to gather together the 100 pesos requested by Lancho, so he was able to send the farmer only a little more than half. He put the bills in an envelope addressed to Lancho and with them a letter containing only a signature, God. The following Sunday, Lancho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. It was a postman himself who handed the letter to him.
Lencho showed not to the slightest surprise on the seeing the bills, such was the confidence. But he became angry when he counted the money. God could not have made a mistake, nor could have denied Lencho what he had requested. Immediately Lencho went up to the window to ask for paper and ink. He was furious and immediately replied the letter. The letter fell into the mailbox. The postmaster went to open it. It said, "God, of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. Send me the rest since I needed it very much. But don't send it to me through the mail because the post office employees are a bunch of crooks, Lencho." This was the total exercise. Let us see the summary of this chapter in Hindi. तो इन हिंदी द चैप्टर नेम वाज ईश्वर के नाम एक पत्र। वह मकान जो पूरी घाटी इंटायर वैली का इकलौता मकान सॉलिटरी हाउस था, एक निचली पहाड़ी की चोटी क्रिस्ट पर स्थित था। उस ऊंचाई से नदी तथा पके हुए मकान के उस खेत को देखा जा सकता था जो फूलों से भरा था, जिनसे एक अच्छी फसल या पैदावार होने का भरोसा होता था। एकमात्र चीज़ जिसकी धरती को ज़रूरत थी वह थी या तो भारी बारिश, डाउनपोर, या फिर कम से कम एक बौछार, शॉवर। वह पूरी सुबह लेंचो, जो अपने खेतों में भली भांति परिचित था, ने उत्तर पूर्व के आकाश को देखने के अतिरिक्त कोई और काम नहीं किया था। अरे महिला, अब सचमुच ही बारिश होने वाली है। उस महिला जो रात का भोजन तैयार कर रही थी ने उत्तर दिया, हाँ, यदि ईश्वर की इच्छा हुई तो। डिनर तैयार। यह कहकर जब तक महिला ने उन सभी को बुलाया तब तक बड़े लड़के खेतों में काम कर रहे थे और छोटे घर के नजदीक खेल रहे थे। भोजन के दौरान ही जैसे लेंचो ने भविष्यवाणी प्रिडिक्शन की थी, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। उत्तर पूर्व दिशा में बड़े बड़े पहाड़ जैसे बादल आते दिखाई दिए। हवा ताज़ी तथा सुहानी थी। वह आदमी बाहर गया और किसी और काम के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ इसलिए ताकि वह अपने शरीर पर गिरती वर्षा का आनंद अनुभव कर सके। और जब वह लौटा तो उसने अचानक कहा, यह आकाश से गिरती हुई वर्षा की बूंदें नहीं हैं, यह तो नए सिक्के हैं। बड़ी बड़ी बूंदें 10-10 सेंट के सिक्के हैं और छोटी बूंदें 5-5 सेंट के सिक्के हैं। संतोषपूर्ण सेटिस्फाइड भाव एक्सप्रेशन सहित उसने पकी मकई के खेतों को देखा जो फूलों से भरा था और वर्षा की चादर से ढका था। लेकिन अचानक तेज हवा बहने लगी और वर्षा के साथ बड़े बड़े ओले गिरने लगे। यह सचमुच ही चांदी के नए सिक्के जैसे लग रहे हैं। वर्षा में भीगने हुए लड़के उन बर्फीले सिक्कों, फ्रोजन पल्स को उठाए बाहर भागे। अब मौसम सचमुच खराब होता जा रहा है, लेंचो ने दुखी होते हुए कहा। मुझे आशा है कि यह शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा, किंतु यह बारिश और तूफान शीघ्र समाप्त नहीं हुआ। 1 घंटे तक ओले बरसते रहे। ऊपर से घर के ऊपर बाग में, पहाड़ी की ढलान पर, मकई के खेतों में और पूरी घाटी पर खेत सफ़ेद हो गया, मानो नमक से ढका हो। पेड़ों पर भी पत्ता शेष न रहा। मकई पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई और उस पर से फूल गिर गए या नष्ट हो गए। लेंचो का अंतर्मन सोल, उदासी, सैडनेस से भर गया। जब तूफान गुजर चुका तब अपने खेतों के बीच खड़े हुए उसने अपने बेटों से कहा, एक टिड्डी दल, प्लेग ऑफ लॉक्टस भी इससे कहीं ज़्यादा छोड़ जाता। ओले तो कुछ भी बाकी नहीं छोड़ गए। इस वर्ष हमारे पास मकई बिल्कुल नहीं होगी। वह एक दुख भरी रात थी। हमारा सारा कार्य बेकार गया। कोई नहीं है जो हमारी सहायता कर सके। इस वर्ष हम सब भूखे रहेंगे। परंतु उन सभी के दिल में जो घाटी के बीच बने उस सुनसान घर में रहते थे, एकमात्र आशा भी थी ईश्वर से मदद की। इतना दुखी या परेशान, अपसेट मत हो। यद्यपि ऐसा लगता है कि सब नष्ट हो गया है, याद रखो, भूख से कोई नहीं मरता। वे तो यही कहते हैं, भूख से कोई नहीं मरता। पूरी रात लेंचो अपनी एकमात्र आशा का संबंध सोचता रहा, ईश्वर जिनकी आंखों जैसे कि उसने बताया गया या सिखाया, इंस्ट्रक्ट गया था, सब कुछ देखती है, यहाँ तक कि वह जो मनुष्य के अंतर्मन कॉन्साइंस में होता है। ये सहायता। लेंचो एक मेहनतकश इंसान था। वह खेतों में पशु की तरह काम करता था, परंतु फिर भी उसे
लिखना आता था। आगामी रविवार के दिन सुबह डे ब्रेक होते ही वह एक पत्र लिखने लगा, जिसे वह खुद शहर ले जाकर डाक में डालने वाला था। जो वह लिख रहा था खुद ईश्वर के लिए पत्र। भगवान उसने लिखा, यदि आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मुझे और मेरे परिवार को इस वर्ष भूखे रहना होगा। मुझे अपने खेत को फिर से बोने शो के लिए और अगली फसल क्रॉप आने तक जीने के लिए 100 पैसों की ज़रूरत है, क्योंकि ओलो ने उसके लिफाफे पर लिखा ईश्वर के लिए, और पत्र को उसने अंदर डाल दिया और अब भी परेशान सा शहर की ओर चल पड़ा। डाकघर में उसने पत्र का टिकट लगाया और उसने डाक वाले डिब्बे में डाल दिया। कर्मचारियों में से एक, जो एक डाकिया था, उसने उस पोस्ट ऑफिस में भी मदद करता था। वह खूब हंसते हुए लाफिंग हार्टली अपने अफसर के पास गया और उसे ईश्वर को लिखा गया पत्र दिखाया। डाकिये के रूप में अपने पूरे कार्यकाल कैरियर के दौरान उसने यह पता कभी नहीं जाना था। पोस्टमास्टर, जो एक मोटा सा दोस्ताना स्वभाव, एमिएबल वाला व्यक्ति था, उसकी भी हंसी छूट गई, ब्रोक आउट लाफिंग। किंतु लगभग तुरंत ही वह गंभीर सीरियस हो गया और डेस्क के ऊपर पत्र को खटखटाते टैपिंग करते हुए कहने लगा, कैसी आस्था है, व्हाट फेथ। काश मेरी भी आस्था उस आदमी जैसी होती जिसने यह पत्र लिखा है। उसने तो ईश्वर के साथ ही पत्र व्यवहार, करेस्पॉन्डेंस शुरू कर दिया। तो लेखक का ईश्वर में विश्वास ना डगमगाने देने के लिए पोस्ट मास्टर को एक विचार सूझा, इस पत्र का उत्तर भी दिया जाना चाहिए। क्योंकि जब उसने पत्र खोला तो स्पष्ट एविडेंट था कि उसका उत्तर देने के लिए उसे दया भाव, गुडविल, कागज़ और स्याही के अलावा भी कुछ चाहिए होगा। लेकिन वह अपने निश्चय रिजोल्यूशन पर अडिग रहा। उसने अपने कर्मचारियों एम्प्लॉइज से पैसे मांगे, स्वयं भी अपने वेतन सैलरी का कुछ भाग दिया और उसे अन्य मित्रों को भी दयालुता चैरिटी देने के इस काम में कुछ देना पड़ा। ऑब्लिक टू गिव, उसके लिए 100 पैसों को इकट्ठा करना असंभव, इम्पॉसिबल था। इसलिए वह किसान को आधे से थोड़ा सा अधिक भी भेज पाया। उसने पैसे को लेंचो का पता लिखे एक लिफाफे इन्वलप में डाला उस पर और साथ ही एक पत्र रख दिया, जिस पर केवल एक ही शब्द हस्ताक्षर सिग्नेचर के रूप में अंकित था, ईश्वर। आगामी फॉलोइंग रविवार को लेंचो रोजाना से कुछ पहले ही वहाँ पहुँच गया, यह पूछने के लिए क्या उसके लिए कोई पत्र है। डाकिया ने खुद से पत्र दिया, जबकि पोस्टमास्टर वैसा संतोष को कॉन्टिनमेंट जो एक अच्छा काम करने वाला व्यक्ति अनुभव करता है, करते हुए पोस्ट ऑफिस से देख रहे थे। लेंचो को पैसे देकर बिल्कुल आश्चर्य सरप्राइज नहीं हुआ। उसका विश्वास, कॉन्फिडेंस ऐसा था, किंतु जब उसने पैसे गिने तो वह क्रोधित, एंग्री हो गया। ईश्वर गलती नहीं कर सकते थे और ना ही वह लेंचो को जो उसने मांगा था देने से मना कर सकते थे। तुरंत ही वह कागज़ और स्याही मांगने के लिए लेंचो खिड़की पर गया। फिर पब्लिक के लिए रखी मेज पर अपनी भावों पर बल देते हुए, जो अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए प्रयास में पड़े रहे थे, उसने लिखना शुरू किया। जब उसने लिखना समाप्त कर दिया तो वह टिकट खरीदने खिड़की पर गया, जिसे उसने अपनी जीभ से गीला किया और फिर मुट्ठी फिस्ट से घूसा मारकर लिफाफे पर चिपका दिया। जैसे ही पत्र डाक के डिब्बों में गिरा, पोस्टमास्टर उसे खोलने के लिए चल दिए। उसमें लिखा था, ईश्वर, वे पैसे जो मैंने मांगे थे उसमें केवल 70 पैसे ही हैं मेरे पास पहुँचे हैं। मुझे बाकी पैसे भेज दीजिए, क्योंकि मुझे इनकी बहुत ज़रूरत है। किंतु वह पैसे मुझे डाक द्वारा मत भेजना, क्योंकि डाक के कर्मचारी ठग क्रूक्स हैं। लेंचो। दिस वॉज द टोटल समरी ऑफ दिस स्टोरी इन हिंदी and English, and in next video I will tell about the exercise of this chapter. If you have any problem, then contact me in comment box or in Gmail or in Instagram. Thank you. Have a good day.